So, good morning to one and all, and I'll thank Kulkarni Kaka, Indian Military School, Chikaldara, Pulgaon, and Yatmal for giving me an opportunity to interact with you all and be myself in a learning mode, as well as thank you for making me learn many new things. Thank you, sir. Hope everyone has joined the Google Classroom so that the material being shared on it is accessible to everyone. Yes, ma'am. If they have not joined, I'm just demonstrating right now. Open your mail, okay, or on your phone. Suppose you are using on phone. Just on Google Google Chrome or Google search, type Google Classroom. You will get the first option, classroom.google. So click on it. Those who have not joined, for them, I'm giving this particular set of steps. Those who have not joined, I'm providing this set of steps. Okay. You all have opened your Google Classroom, those who have not joined. Now, on the right hand corner, you will find a plus sign next to your just the symbol or your first name letter. Like for me, it comes M. So just identify that and click on plus sign. After clicking on plus sign, it will ask you for the class code. It will ask you for the class code. I am typing in chat the class code so that you all can enter in it. R six BH W 6E. R6 BHW 6E. So this is the class code. In place of class code, you please type it, and in this on the right hand side corner, you will find a blue colored join button. Click on it. Hope everyone is able to work on it. Yes, ma'am. You can either post on the chat or just check it out. You can unmute yourself and just check it out that you are joined with the Google Classroom.
If you are on laptop, you can open the mail, and from these 9 dots, you can scroll down and click on classroom. After clicking on classroom, you can see this plus sign. Click on it and click on join class. Here, please provide the class code that I have text on the chat box. And when you type it here, this particular, now it is disabled, it becomes blue when I type the particular class code. Click on join, then you will see yourself in the people's section. Okay, I hope you all are done with. Anybody is having any issue for joining the classroom? In the people section, we have 17 participants. Okay, so please, those who are not able to join, see that by today evening you join, so that you can have access to all the study material. And if you find any difficulty regarding that particular topic, you can drop the message on the Google Classroom or on my personal WhatsApp. At both places, I'll respond. No issues. Okay. So now, friends, today we'll be working with first how to create a Google form and make it as a your descriptive assignment and a descriptive test. Then we will see how to make a specific attendance. Yesterday I have shown you from student side how you can create the attendance. Now I'll show you how to make the attendance from faculty's side. Okay, it will look like the same that we are doing in our regular attendance. Okay. So in classwork, suppose I'm preparing create. Now, as I have to create a Google form, I'm taking quiz assignment. You can take it anything. Okay. And I'm putting it as attendance. You can make the things like this and post it on your Google Class every day. Like हर दिन आप सेम पोस्ट को रीपोस्ट करोगे, ठीक है. बट अगर आपको इसमें एक अल्टरनेटिव और है कि आप आपके पर्सनल मेल आईडी से या गूगल क्लासरूम जिस मेल आईडी से क्रिएट किया है उसके ड्राइव पे जाके वहां पे भी आप एक गूगल फॉर्म अटेंडेंस के लिए क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दैट गूगल फॉर्म फॉर द अटेंडेंस. तो आपके पास दोनों भी चॉइसेस है. इस तरीके से स्पेसिफिक अलग से अटेंडेंस डेडिकेट करके भी आप काम कर सकते हो या आपके पास चॉइस है कि आप उसको पर्सनल वे में भी ले सकते हो. इट इज अप टू यू. मेरे लिए पर्सनल जो पर्टिकुलर वर्किंग है वो ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि मेरे मेल आईडी से मुझे तुरंत वो फॉर्म का लिंक कॉपी करके उस समय उस क्लास के चैट बॉक्स में या कहीं पे भी शेयर करना है तो वो मेरे लिए आसान होता है. ठीक है. तो इट बिकम्स हैंडी फॉर यू और एक ही लिंक आप बार बार यूज कर सकते हो. ठीक है.
सिर्फ अटेंडेंस लेते समय आप एक चीज का ध्यान रखोगे, अगर मैं स्टूडेंट्स को वो शेयर करने के लिए दे रही हूँ, स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करने के लिए दे रही हूँ, तो मुझे बार बार उसका रिस्पॉन्स चेंज करना पड़ेगा, मतलब ऑन ऑफ करना पड़ेगा। और वही अगर मैं खुद मेरे साइड से एक ही लिंक शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं व्यू फॉर्म करके उसी में तुरंत वहीं के वहीं अगर मैं डेटा मेरा इंसर्ट कर रही हूँ, तो मुझे वो ज्यादा हैंडी लगता है एंड आई कैन वर्क इट मोर बेटर, और मुझे बार बार उसको नो रिस्पॉन्स और ऑन रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, so I will show you both the things. First, this one I will show you how to post it on the classroom, and then we will see on the other one. ठीक है, प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट बिकॉज ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एंड इट विल क्रिएट दैट सेम लुक एज योर रेगुलर अटेंडेंस। ठीक है, सो आई एम क्लिकिंग ऑन ब्लैंक क्विज। Okay, I am putting the heading as attendance. Okay, now here in untitled question, what we can do now? अभी तक हम लोग सिर्फ एक एक बच्चे के साथ काम कर रहे थे या एक एक क्वेश्चन के साथ काम कर रहे थे। अब मैं आज जो आपको शेयर करने वाली हूँ, इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस वर्केबल हो सकते हैं। जस्ट आई कैन शो यू इन 1 minute. Suppose you mention the class here. So my class is, or I can say my subject is, if I am a teacher of taking 4-5 subjects, तो मैं वो हिसाब से भी आपको सेम अटेंडेंस बताऊंगी फॉर्म। और अगर मैं एक ही सब्जेक्ट लेती हूँ, क्लास अलग अलग है, तो वैसे भी बताऊंगी। और अगर मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ले रही हूँ और एक ही क्लास ले रही हूँ, तो वो भी बताऊंगी। तो पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे एक टीचर, एक सब्जेक्ट, एक क्लास। ठीक है, so for example, I am taking for class 10. Okay, so now in place of multiple choice, I'll take multiple choice grid. Fine, or tick box grid. आपके सुविधा से रहेगा, but first I'll take multiple choice grid. So friends, यहाँ पे अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं एक रो वर्कआउट कर रही हूँ और इस रो में मैं 1 by 1 यानी 1 रो 1 कॉलम। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये किया, नेम लिख दिए। पहली बार मुझे पूरे सारे बच्चों के नाम कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रेज होगा कि अगर आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मैडम क्या 100 नाम हमको फिर से टाइप करने हैं? नो, देयर इज आल्सो अ सॉल्यूशन, आई विल जस्ट शो यू। ठीक है, सपोज आपके पास ये वर्ड की फाइल में पूरे नाम बने हुए हैं या एक्सेल की फाइल में पूरे नाम एक लिस्ट में बने हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दैट आई विल शो यू। वहां से वो नाम कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हो। ऑल नेम्स एट वन स्ट्रेच, इट्स वेरी इजी। We should use the controls rather than controls using us. So suppose I have 5 names being written in the list.
Okay, suppose these are the 6-7 names mentioned in the this thing. आपके क्लास में ये 6-7 लोग हैं, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक किया और कॉपी किया, या फिर आप कंट्रोल सी भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप पहले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे। डन? हाउ मच टाइम इट टेक्स? So all your class students are enrolled within 1 minute. कंट्रोल क्या मैम? कंट्रोल जी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है सर, और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। कंट्रोल मतलब CTRL का बटन होता है, ये पेयर्स में आता है, एक आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, एक आपके राइट हैंड साइड पे रहेगा, तो आप कोई भी बटन यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है? CTRL का बटन मैंने दबा के रखा या प्रेस करके रखा, और उसके साथ कॉपी करना है तो सी क्लिक किया, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉपी। और अगर मुझे कहीं ले जाके उसको पेस्ट करना है तो CTRL का बटन प्रेस करके रखा और फिर V का बटन दबाया। ओके ओके मैम। Dr. Mamta, can I ask a question, please? Yeah, sir. Dr. Mamta, does it happen only with the multiple choice grid? Because when we prepared a quiz earlier and I tried placing the options, those 4 options for the multiple choices. It happens with multiple choice single. They came in one row. In multiple choice also. I'll show you. Okay. Suppose this is the next question I'm taking, and for that next question there is only single multiple choice, and I'm taking it, I'm making control V, so it happens there also. Okay, fine, thanks. If we want to remove any element from this, just by clicking the cross we can remove it. Suppose we have copied some names, and some names are like कि एक क्लास में कुछ बच्चों का हिंदी होता है, कुछ लोगों का संस्कृत होता है, तो आपने पूरे के पूरे नाम एक साथ में कॉपी कर लिए, so you need now to separate those names. So जो चाहिए वो रखो, बाकी के रिमूव कर दो. Same happens with Hindi or Sanskrit or any other optional subjects. Okay, sir? So now यहाँ पे मैं जितनी एड रोज करूंगी उतने हिसाब से वो वर्क करेगा. फाइन, ये मैंने क्या यूज किया? मल्टीपल चॉइस ग्रिड. अब मुझे इसमें प्रेजेंट, सेकेंड कॉलम चाहिए एब्सेंट, और कुछ हो सकता है लाइक व्हाट इट कैन बी, सम एक्टिविटीज में वो ऑक्यूपाइड है, मतलब वो प्रेजेंट भी नहीं है, एब्सेंट भी नहीं है, बट यू आर अवेयर ऑफ कि ही इज बिजी इन सम एक्टिविटीज. He is unwell, he is sick. Yeah, unwell, but he has reported you, so we can consider his attendance. Or sometimes he is busy in some national or international or some state level activities or some camps, so you can mention the heads like activities. Okay, so now just see what I have done. मैंने सिर्फ इसमें एक क्लास लिया और मुझे 4 कैटेगरीज में वर्कआउट करके दिया, ठीक है. अब इसका मैं प्रीव्यू देखूंगी. Yes, now I want to make, just call the names. Aman present, Anand present, Ajay absent, Ravi present, Sheetal unwell, Sanjay present. Or then you found, you know, he is busy in activities, so you changed it. And Raj present. Submit. आपकी आज की अटेंडेंस सबमिट हो गई है. हैंडी, Can you once again tell how this right side 4 columns came? Can you tell once again? Yes. It came due to multiple choice grid, sir.
We have created these 4 columns now. We have labeled it. Yeah. So with this, we could find it. So now can I show you the response? नहीं, उसके बाद आपने क्या किया वो फीड करने के बाद? Yes, I'll show you again. Okay. देखिए अभी अगर मुझे खुद को ही बार बार अटेंडेंस लेनी है तो मैं मेरे मेल आईडी से अगर ये यूज कर रही हूँ तो इट बिकम्स इजी फॉर मी. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस पर्टिकुलर फॉर्म को ओपन रखूंगी. क्लास लेते समय उस पर्टिकुलर फॉर्म को ओपन किया, उसका प्रीव्यू यहाँ पे सेट कर लिया. प्रीव्यू करने का मतलब क्या कि हम भी उसको अपने आप में वहीं के वहीं टेस्ट करके वर्क कर सकते हैं, किसी को हमको सेंड नहीं करना है. ठीक है, तो हमारा सेंडिंग टाइम सेव हो जाता है. फाइन. अब जब सेंडिंग टाइम हमारा सेव हो रहा है तो हम क्या कर सकते, अपने आपके पास में 2 चॉइसेस है. एक तो इस तरीके से प्रीव्यू आप लीजिए, या सेकंड चॉइस ये है कि ये जो लिंक आपको दिख रहा है, देखिए ये लिंक दिख रहा है, इसको आप आपके नोटपैड पे कहीं कॉपी पेस्ट करके रखिए. और जब भी आप पर्टिकुलर वर्कआउट करना चाहते हो अटेंडेंस, इसको गूगल में पेस्ट कीजिए. देखिए जैसे मैंने इसको कॉपी करके रखा और जब गूगल शुरू कर रही हूँ इसमें यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर किया. आ गया. यानी स्टूडेंट्स के सामने आपको ओपन पहले से नहीं करके रखना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो. या आपको ये चीजें जैसे अभी मुझे जब चाहिए तब मैंने इसको हाइड करके रखा, जब चाहिए इसको ओपन किया, चलो कम ऑन मार्क द अटेंडेंस, ऐसा करके क्लिक करते गए और सबमिट पे क्लिक किया तो मेरी 2 दिन की अटेंडेंस मार्क हो गई. या आप अगर सेम स्टूडेंट्स है और 2 क्लासेस को अलग अलग पढ़ा रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो. I hope you all have got it and your attendance issue is resolved. Everyone please take a note of it. आप लोगों का जो मेजर अटेंडेंस का इशू होता है, is it resolved? You can respond either by unmuting yourself or on the chat. Madam, repeat the whole procedure again, madam, please. Okay, fine. स्क्रैच से शुरू करें. मैंने ये पूरा रिमूव कर दिया, ये भी मैं बैक जा रही हूँ. अब मैं आप लोगों को सिंपली अपने मेल आईडी से अटेंडेंस कैसे बनाना है वो बता रही हूँ. ठीक है, आप क्या करोगे, मेल आईडी ओपन किया, ये 9 बॉक्सेस पे गए, क्लासरूम पे गए, तो हम क्लासरूम पे आ जाएंगे. तो अभी हमको क्लासरूम नहीं जाना है, हम 9 बॉक्सेस पे गए और यहाँ पे ड्राइव ऑप्शन दिख रहा है. और मजे की बात ये है सर कि अगर आप लोग आपके ड्राइव पे, जैसे कल हम लोगों ने एक टेम्पलेट बना के रखा था, तो एग्जैक्टली वैसे ही इसको अगर एक टेम्पलेट बोल के हम लोग सब यूज करेंगे तो चाहे सपोज 10 टीचर्स होंगे तो भी आप इंडिविजुअली सबका रोल कॉल रजिस्टर तो सेम रहेगा, तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि वो बच्चा उस क्लास में प्रेजेंट था या नहीं था. You can make that modifications in your form also. तो मैं न्यू पे क्लिक कर रही हूँ. It takes time. Huh? Actually, my drive is loaded now, so. जब मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ तो मुझे गूगल फॉर्म दिखाई देता है. मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो जो हम क्लासरूम में जाके अटेंडेंस पे जाके वो न्यू फॉर्म क्रिएट कर रहे थे, एग्जैक्टली ये भी सेम ही प्रोसेस है.
सिर्फ वो क्या किया हमने, क्लासरूम के थ्रू आपको बताया कि वहां पे आप भी पोस्ट कर सकते हो, नहीं वहां पे पोस्ट करना है, आपको लगता है कि सारे टीचर्स को नहीं पता है, सारे स्टूडेंट्स को नहीं बताना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते, ठीक है। इसका आप ये जो सारी अटेंडेंस आ जाएगी सर, इसको आप स्टूडेंट वाइज भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब that also I'll show you how to find the monthly attendance, cumulative attendance, और अगर उसका और भी कुछ जैसे स्टूडेंट्स का ओवरऑल, मतलब एक स्पेसिफिक क्लास में कोई स्टूडेंट का ओवरऑल अटेंडेंस कैसे वर्कआउट करना है, तो वो भी आप मैनेज कर सकते, बट दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन एक्सेल शीट, दैट आल्सो आई विल शो यू। यस सर, आप मोबाइल से भी अटेंडेंस ले सकते हो, ये गूगल फॉर्म मोबाइल पे भी सेम तरीके से क्लिक होगा, कोई दिक्कत नहीं। In my last classes also I have told you, in my last sessions also I have shared with you कि सिर्फ लुक में थोड़ा सा फर्क आता है, बाकी आप हर चीज फोन और लैपटॉप दोनों जगह सेम वर्क कर सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज। सो नाउ आई एम टेकिंग इट अटेंडेंस, ओके। मैं इसको क्या कर रही हूँ, अटेंडेंस को मेन लिख देती हूँ, सो दैट द थिंग्स आर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लास डालूंगी, क्लास 10, ठीक है, और यहाँ पे मैं सारे स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के नाम सॉरी पेस्ट करूंगी। सो सारे नाम आ गए। अब मुझे प्रेजेंट ऐड कॉलम पे क्लिक करूंगी, वहां लिखूंगी एब्सेंट, फिर ऐड कॉलम पे क्लिक करूंगी, प्रेजेंट एब्सेंट, मैसेज मतलब he has informed you that he will not be able to attend the class for so and so reason, या some activities, this same form can be used by the I can say principal also for taking the attendance regularly for the teachers, like अभी आपने अगर कोई ऑनलाइन मीटिंग कॉल की है, तो जैसे हम लोग एक बैकलॉग में ऐसे समझ में नहीं आता ना कि हु इज प्रेजेंट, क्योंकि अभी साइनिंग नहीं हो रहा है, और तो इस तरीके से आप आपका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। सेम फॉर्म, ओनली इन प्लेस ऑफ व्हाट विल बी, इन प्लेस ऑफ स्टूडेंट्स नेम, the names will be of the faculties, and likewise for minutes, for all meetings you can maintain the record, okay। So now अभी मैंने क्या 4 कॉलम्स क्रिएट किए फ्रेंड्स। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू, आई एम क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू, ठीक है। और जैसे ही है देखिए, अब मैं यहां से जो भी नाम सिलेक्ट कर रही हूं, सबमिट, माय अटेंडेंस इज डन, ऑल स्टूडेंट्स कैन बी व्यूड एट अ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए आपको भी एक जो क्लासरूम वाला फीलिंग है कि हमने स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लिया और एक जो कनेक्शन होता है वो भी यहाँ पे देखिए सॉर्ट आउट हो रहा है, एंड इट वर्क्स. ओके, देन हाउ टू सी द रिस्पॉन्सेस. तो यहाँ पे देखिए मैंने ये एक बार फॉर्म क्रिएट करके रखा. सो यू गॉट इट. सो देखिए अभी मैंने इसमें डेट और टाइम नहीं लिखा था, तो इस डेट और टाइम के हिसाब से सर आपका डेली अटेंडेंस आ गया ये बच्चे का. अब अगर सपोज ये मैं फिर से उसको अगेन वन रिस्पॉन्स सेंड कर रही हूँ. ये मेरी सेकेंड अटेंडेंस होगी. तो इस तरीके से मेरी ऑल द क्लासेस की अटेंडेंस होगी. ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे मैं उसकी प्लीज एवरीवन टेक अ नोट ऑफ इट. यहाँ पे अगर मुझे उनका क्यूमुलेटिव अटेंडेंस लेना है तो मंथ में कितने क्लासेस होते हैं? ऑन एन एवरेज 25 या 26 क्लासेस होते हैं इफ आई एक्सक्लूड संडेज. तो मैं क्या करूंगी एक्सेल की शीट में यहाँ पे आफ्टर 30 आई विल मेक अ 30 और 35 जैसे मंथली अटेंडेंस अगर मुझे सेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये एक महीने के लिए हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे सेट करूंगी मंथली. जब मेरा पूरा अटेंडेंस लेना कंप्लीट हो जाएगा वो मंथ के लिए, तो उस समय ये मैं अप्लाई करूंगी. ठीक है, मंथली अटेंडेंस. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अमन की मंथली अटेंडेंस लेनी है तो मैं कैसे वर्कआउट करूंगी? यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लीज एवरीवन नोट आउट द थिंग्स इक्वल टू count if. Please use the function count if. ठीक है, और ब्रैकेट में राउंड किया, राउंड ब्रैकेट अप्लाई किया और रेंज मांगता है वो, तो मैंने उस बीच में मतलब कर्सर बीच में लाके क्लिक किया और पूरे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने कॉलम्स को सिलेक्ट किया. जितना मुझे ऐसा लगता है कि उसमें उतने पूरे स्टूडेंट्स हैं करके उतना उसका अटेंडेंस है. ठीक है, जैसे ये सपोज 30 डेज अटेंडेंस है. ओके, और मैंने एंटर किया, पहले कॉमा दिया. अब मुझे क्या चेक करना है? तो वो प्रेजेंट है क्या. ठीक है, डबल कोट के अंदर मैंने प्रेजेंट टाइप किया एंड आई एम पुटिंग एंटर की. सो दिस विल मी हिज मंथली अटेंडेंस. Please note the formula. This will help you. Yes, I'll show you. You can do the sum of columns also. I hope you are done with this attendance. Then
वैसे ही आप हॉरिजॉन्टली उस दिन के इसमें आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी अब ये आपका डे वाइज क्लास वाइज अटेंडेंस हो गया, तो यहाँ पे भी लास्ट में मतलब जहाँ पे आपके लास्ट स्टूडेंट का एंट्री आ रहा है वहां से आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप इक्वल टू काउंट इफ लोगे फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का पैर दोगे, बीच में क्लिक करोगे और क्लिक करके रेंज कहाँ से सिलेक्ट करोगे, जितने आपके स्टूडेंट्स हैं वो। Oh, I had not given the criteria. कॉमा दिया और फिर मुझे काउंट करना है प्रेजेंट कितने हैं, ठीक है। तो देखिए 7 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। अब सेम क्लिक एंड ड्रैग मेथड यूज करके मैं बाकी लोगों का सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एक ही प्रेजेंट है और यहाँ पे देखिए आप बाकी के सब लोग जो है वो एब्सेंट है। तो अब जैसे जैसे यहाँ पे एंट्रीज अपडेट होती जाएगी अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे वर्क होता जाएगा। हम लोग उसको भी देख लेते हैं एक बार। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे मैं क्लिक कर रही हूँ एंड आई एम मार्किंग एवरीवन प्रेजेंट। सबमिट। नाउ वी आर हैविंग 3 अटेंडेंस। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपका प्रीवियस डे का कंप्लीट होता है आप नेक्स्ट डे के लिए इसको ड्रैग करो। तो ये जितने भी हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं ना सर, आई रिक्वेस्ट यू कि आप देखिए पहले यहाँ पे 1 था, बाद में ये अपडेट हुआ तो रो वाइज अपडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जैसे यहाँ का अपडेट हो गया था, डिलीट हो गया था और ब्लैंक आ गया था, तो क्योंकि रो वाइज वो अपडेट हो जाता है। तो हम ये हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी भी एंट्रीज हैं, जो भी हमको फाइनल टच देना है, इसको हम कॉपी करके हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक्सेल में रखेंगे और जैसे जो फंक्शंस मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं वो फंक्शंस आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए आपका काउंट तुरंत आ गया। तो ये काउंट इनडायरेक्टली आपका रो टोटल या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट आ गया, ठीक है। अब अगर आपको क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए तो आप क्या करोगे, जहां पे रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे सम फंक्शन यूज करोगे और उसको पूरी की पूरी हमको रेंज देनी होगी। ये पूरी रेंज मैंने सिलेक्ट की और एंटर किया तो मुझे क्यूमुलेटिव टोटल मिल जाता है। सेम अगर मैं इधर का करना चाह रही हूँ तो मुझे अगेन आई हैव टू यूज द सम फंक्शन और मुझे जो रेंज है मतलब इंडिविजुअल, अभी ये स्टूडेंट्स का अटेंडेंस मंथली का टोटल आ गया, ठीक है। अभी हमने एक ही कॉलम के लिए अप्लाई किया था तो एक में ही आया, उसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करके एक्सटेंड कर रही हूँ फॉर अदर स्टूडेंट्स। तो देखिए रो सम और कॉलम सम एक। तो ये देखिए इंडिविजुअली स्टूडेंट्स का भी अटेंडेंस आ गया। ओके, so I hope your attendance issue is sorted and you can make the totaling also with less efforts, and hope you all have noted the this thing. मैम वन क्वेश्चन, ये गूगल फॉर्म से अटेंडेंस लेके आपने एक्सेल शीट में कैसे पेस्ट किया, एक बार बताओगे? वो ऑटोमेटिक आ जाता है सर, अच्छा, अपडेट ऑटोमेटिक होता है। द मोमेंट वी क्लिक ऑन सबमिट ना, वो ओके। गूगल शीट में अपडेट होता है। ये एक्सेल शीट में? हाँ हाँ, एक्सेल गूगल की जो एक्सेल शीट है ना, अच्छा ये जो गूगल, आप, ओके, हाँ हाँ ये इस शीट में ऑटोमेटिक अपडेट होता है क्योंकि वो दोनों लिंक होती है सर। सबमिट करने का, ओके, ठीक है। हाँ, द मोमेंट वी सबमिट ना वो अपडेट हो जाता है। यू हैव टू प्रेस सबमिट, ओके।
यस सर, आप लोग इसका एक सिंटेक्स बना के रख सकते हो. इफ यू वांट आई कैन प्रोवाइड यू विद द टेम्पलेट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर अटेंडेंस. तो उसमें आपका पूरा वर्किंग कंफर्टेबली हो जाएगा. यानी अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अगर मुझे शीट दे देते हो तो विद इन 1 day आई मेक द थिंग्स रेडी फॉर यू एंड आई शेयर इट. सारे फॉर्मूले जो भी लगते हैं, जैसे एवरेज अटेंडेंस होता है, देन जैसे अभी इसमें सिर्फ हमने प्रेजेंट का काउंट किया. अभी अगर उस बच्चे ने मैसेज दिया है तो मैसेज का काउंट नहीं हुआ है ना. तो वो भी हम उसमें वर्क करके क्यूमुलेटिव मैसेज और प्रेजेंट वो कर सकते हैं, या फिर एक्सक्लूसिवली जो एब्सेंट है वो हम काउंट करके वर्कआउट कर सकते हैं. इसमें और भी मतलब इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं. सो आई होप. एक्सक्यूज मी यस मैम, थोड़ा नेटवर्क का मेरा इशू हुआ था. तो हमें जो ये अटेंडेंस लेना है, तो ये अटेंडेंस की लिंक बच्चों को भेजना पड़ेंगी क्या? नहीं, मैंने मेरे हमें कुछ प्रीव्यू से अटेंडेंस मेरे ये आपने क्या करना, आपके पास में टेक्सचुअल फॉर्म में कहीं तो भी सेव करके रख लो. जैसे ये वाली जो लिंक है ना, ये जो मैं व्यू फॉर्म की लिंक, ये नहीं बोल रहा मैं. ये भेजने का काम ही नहीं अब सर. मैम जो कल जो लिंक है, अभी बताया जैसे मुझे था ना, अटेंडेंस लेना है, कल जो बताया, हाँ उस लिंक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ, बोलिए मैम. कल जो मैंने आपको बताया था सर, वो अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट एंट्री करे तो वो कल वो वाला ऑप्शन बताया था. और आज जो मैं जनरली जो टीचर्स एक ट्रेडिशनल वे में फॉलो करते हैं कि वो खुद अटेंडेंस लेते हैं, तो अगर आपको वो फॉलो करना है तो ये तरीका है. ओके मैम, ओके, थैंक यू. दोनों भी आप, मतलब आपके ऊपर ये चॉइस है कि आपको उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. मुझे बच्चों से कनेक्टेड रहना पसंद है तो मैं ये वाला मेथड फॉलो करती हूँ, क्योंकि इसमें कैसा होता है जब मैं कॉल करती हूँ उनका नाम, हाँ इसमें 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हम लोगों के जाते हैं ऑनलाइन में फॉर टेकिंग द अटेंडेंस. अगर हम वो लिंक शेयर करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होता है हम लोगों का. बट दिक्कत क्या होती है कि कोई बच्चा अटेंड करता है, कोई नहीं करता है, तो वो भी एक थोड़ा इशू होता है. और दूसरा यहाँ पे कैसा है, आप बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाते हो बाय लाइक व्हेन यू कॉल देयर नेम, सो यू गेट कनेक्टेड विद देम. और बच्चों को भी लगता है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं. थैंक So I prefer this. आपका चॉइस है, मतलब इट इज नॉट अ थंब रूल कि आप यही यूज करोगे या वो ही यूज करोगे, एज पर द रिक्वायरमेंट. जैसे अगर इन केस आपका जैसे अभी नेटवर्क इशू था, तो दैट टाइम यू कैन शेयर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट वाइज लिंक, तो आपको उस दिन का अटेंडेंस मिल जाएगा. ओके, है ना. थैंक यू. हाँ, और किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग अटेंडेंस? I hope the things are sorted and all the queries are resolved regarding attendance. आप लोग हमेशा आपके पास में क्या रखोगे, और अगर यही आपके एक्सेल शीट अगर आपके गूगल क्लासरूम में रहता है तो आपके प्रिंसिपल को भी अगर कोई बच्चे का कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट का उस टाइम लॉग का देखना है तो ही कैन सी. नहीं तो फिर आप लोगों को इंडिविजुअली आपके मेल पे से वो पूरी एक्सेल की शीट सेंड करना पड़ेगा, या वो आपका अटेंडेंस फॉर्म गूगल का शेयर करना पड़ेगा, सो दैट द रिस्पॉन्सेस आर आल्सो शेयर. ठीक है. एनी इश्यूज, एनी डाउट्स, और द थिंग्स आर सॉर्टेड? प्लीज. Hope everyone is well. Yes sir, it's very magical. The things that we are so much scary about those things, so the things are really very helpful और बहुत इजी वे में आप वर्क कर सकते हैं. हम जितना स्कैरी होते हैं ना चीजों के ऊपर, उतना पता चलता है कि द थिंग्स आर वेरी इजी.
Okay, fine. Or now we will work on how to make a subjective assignment. अभी तक के हमने ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट देखी थी, राइट? नाउ विल सी द सब्जेक्टिव असाइनमेंट. We'll go to Google Classroom, click on create assignment. Here I am putting subjective assignment. Click on create from blank और यहाँ पे मैं फॉर्म्स ले रही हूँ. यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव असाइनमेंट लिख रही हूँ सो दैट अगर बच्चे को कुछ खुद से टाइप करना है तो वो कर सकता है. अब ये जो सब्जेक्टिव असाइनमेंट है फ्रेंड्स, आप एक चीज ध्यान रखेंगे इसके बारे में. आई जस्ट शेयर यू. Sir, on your email we have 15 GB space including your drive. Suppose all the material is important, I'll suggest you to have one more email where you can keep this as a backup. That important material that you need just to store it so that it is online available. So make a use of another email. और अगर आपको लगता है कि नहीं अब बहुत डंप होते जा रहा है तो आप चेक करेंगे कि आपका जो प्रमोशंस वाला टैब आता है, आजकल 3 टैब्स में मेल आता है. आई शो यू. देखिए प्राइमरी आता है, सोशल आता है, प्रमोशंस आता है. सो ऑन रेगुलर प्रैक्टिस व्हाट आई डू, जितने भी प्रमोशंस में आते हैं आई सिलेक्ट ऑल. ये देखिए ये बॉक्स पे मैं जाती हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और जस्ट आई डिलीट इट. क्योंकि अगर प्रमोशंस में मुझे, देखिए इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, अभी कुछ ऑप्शंस है नहीं यहाँ पे. देखिए प्रमोशंस टैब एम्प्टी है तो नथिंग विल बी विजिबल क्योंकि मैंने आई रेगुलरली कीप ऑन डिलीटिंग. मेरे इसमें सोशल में भी कुछ नहीं है. और प्राइमरी में देखिए इतने सारे मेल आई हैव रिसीव. अब मुझे ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये मुझे काम के नहीं है तो मैंने इतने सिलेक्ट किए और मैं सीधा यहाँ पे देखिए डिलीट ऑप्शन है उस पर क्लिक करी. यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिलीटिंग. यू मे नॉट मिस द थिंग्स एंड फिर आपका डेटा डिलीट हो जाएगा. इन केस अगर गलती से आपका डेटा डिलीट भी हो जाता है देयर इज वन चांस फॉर यू. ये देखिए यहाँ पे बिन फोल्डर है, बिन में आप जाएंगे और जिसको आपको डिलीट, जैसे ये गलती से डिलीट हो गया, आपको ये रिस्टोर करना है, कायम का डिलीट करना है तो डिलीट फॉर एवर है. और अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया है तो मूव टू करना है तो आप अगेन मूव टू इनबॉक्स कर सकते हो. तो वो डिलीट से हट गया. एम्प्टी बिन नाउ करती हूँ तो द थिंग्स आर डन. ये क्लीन हो जाएगा. ठीक है. और रेगुलरली आप देखेंगे आपके स्पैम में कुछ नहीं होना चाहिए. इस तरीके से आप आपके सारे इनबॉक्स को जितना आप, जैसे हम लोग घर में का कचरा जस्ट कीप ऑन ये कर सकते हैं. अभी ये मुझे मेल क्यों आ रहे हैं सर? क्योंकि आप नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हो. हाउ कैन आई स्टॉप मेल फ्रॉम ऑफ क्लासरूम? मे आई नो द इंटेंशन टू स्टॉप इट? Can you please elaborate, sir? Madam, I am getting for each and every activity from the different class. हाँ, तो आपको नोटिफिकेशंस आते होंगे सर कि ये बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट किया, इसने कमेंट किया, ऑल दोज थिंग्स. Yes, madam. यस, तो उसको हम ऑफ कर सकते हैं. यस सर, उसको हम ऑफ कर सकते हैं. जैसे अभी मुझे हर पार्टिसिपेंट का एक मैसेज आ रहा है जब भी वो जो भी कमेंट करते हैं ऑन द गूगल क्लासरूम, आइदर प्राइवेटली और ऑन द क्लासरूम. तो देखिए उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है. मैं क्लास को सिलेक्ट कर रही हूँ.
ठीक है, और इस क्लास के इसमें सेटिंग्स में गए, ठीक है, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशंस एक ऑप्शन आता है, शो नोटिफिकेशंस, हाइड नोटिफिकेशंस, है ना, दिख रहे हैं आपको? Yes, ma'am. स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। आप लोगों को लगता है कि बच्चों ने सिर्फ देखना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के भी मैसेजेस क्लास पे पोस्ट करते जाते हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ मतलब बच्चे भी कुछ पोस्ट करें या सिर्फ कमेंट करें या सिर्फ टीचर्स ही पोस्ट करके कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देन आप एक सेटिंग और कर सकते हो कि आपको मेल पे वो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। ये देखिए अभी ये जो नोटिफिकेशंस है ये यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में मैं गई तो यहाँ पे रिसीव ईमेल नोटिफिकेशंस ऑन है, राइट, और यहाँ पे मैंने उसको ऑफ कर दिया, तो अब आप लोग जितना भी मुझे मेल भेजोगे वो वर्केबल नहीं रहेगा, आप भेज नहीं पाओगे, आई विल नॉट गेट दैट नोटिफिकेशन। Okay, thank you, madam. आप गूगल पे मतलब क्लासरूम पे पोस्ट कर दोगे तो जब मैं क्लासरूम ओपन करूंगी तब मैं उसको देखूंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे कोई मेल पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि ये स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किया है या ये स्टूडेंट ने ऐसा पर्टिकुलर कुछ कमेंट किया है, वो मुझे कुछ भी नहीं आएगा। Okay, thank you, madam. Okay, thank you. Hope everyone's questions and queries are resolved. Hope everyone's queries are resolved. Yes, madam. Okay. So now we'll start up with making how to make the evaluations. Just give me 1 minute. हॅलो सर. हा हॅलो भोजने सरांना ना. हा हो जस्ट 1 मिनट ब्रेक लिया था मैंने। फ्रेंड्स अब हम ये जो असाइनमेंट्स हमने क्रिएट की है इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे दैट वी विल सी। होप आप लोगों के बाकी के जो सारे क्वेरीज थे वो रिजॉल्व हो गए हैं। सो कैन आई गो एंड स्विच ओवर फॉर वैल्यूएटिंग द असाइनमेंट्स? यस मैम। ओके फाइन। सो पहले हम लोग सब्जेक्टिव असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मैंने कोई क्वेश्चन लिख के रखा है, सपोज राइट अ short note on Google Classroom। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस है। पहला चॉइस ये है कि आप ये जो सब्जेक्टिव असाइनमेंट है उस बच्चे को क्वेश्चन दिखा रहे हो, ठीक है, वो पेपर पे उसका आंसर लिखेगा और वो आपको फोटो निकाल के उसकी अपलोड करके देगा। ये एक पहला चॉइस हो गया। और दूसरा चॉइस ये है
कि वो यहीं पे ये जो स्पेस प्रोवाइडेड है यहाँ पे उसी में आंसर लिखेगा बाय टाइपिंग। आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। आप आइदर उस स्टूडेंट को बोल सकते हो कि लाइक व्हाट शुड बी द आंसर, मतलब इट शुड इधर शुड बी ऑन द पेपर और ऑन द गूगल फॉर्म इटसेल्फ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस सेट कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ मैं अभी पहला वाला ऑप्शन बता रही हूँ जिसमें वो बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पेपर पे लिखेगा, उसका फोटो निकालेगा और वो यहाँ पे अटैच करके सेंड करेगा। सो यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस के नीचे आपको फाइल अपलोड ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप कितने नंबर ऑफ फाइल्स उसको वर्कआउट करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि वो वर्ड का फाइल उसने जैसे टाइप करके वर्ड का फाइल अटैच करके भेजे, या पीडीएफ का फाइल अटैच करके भेजे, या जेपीजी का फाइल अटैच करके भेजे, ये आपके ऊपर है। व्हाट चॉइस यू आर, व्हाट टाइप ऑफ फाइल डू यू विश। ओके, सो आई विल क्लिक ऑन लाइक नंबर ऑफ फाइल्स कितने हैं। सपोज एक ही फाइल, जैसे अभी आजकल कैम स्कैनर या फिर माइक्रोसॉफ्ट लेंस या लाइकवाइज कुछ यूज करके आप एक पूरे सेट ऑफ पेजेस का एक पीडीएफ बना सकते हो। सो अगर आप नंबर ऑफ फाइल्स में एक ही लेते हो देन कितने साइज का वो फाइल मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे अगर आप मिनिमम कैपेसिटी लेते हो तो 1 MB में एक फाइल बन जाती है, डिपेंड करता है। जैसे अभी आप जितना मिनिमम कैपेसिटी यहाँ पे रखोगे ना तो उतना आप लोगों को मतलब ज्यादा डेटा स्टोर करने का स्कोप मिलेगा। ठीक है, देन ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, इसलिए आपने उसको टिक किया और आप इसका प्रीव्यू देखेंगे। यानी स्टूडेंट को ये कैसे दिखेगा, देखिए अभी यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, ऐड फाइल पे क्लिक करेगा। अब उसके फोन में उसने फोटो ले रखा है तो वो क्या करेगा, उसके फोन से या लैपटॉप से सिलेक्ट फाइल्स ऑन योर डिवाइस करेगा, क्योंकि ड्राइव पे हो सकता है उसकी फाइल हो नहीं हो। ठीक है, देन फॉर एग्जांपल ये वाला वो फाइल है, ये क्लिक किया, ओपन किया तो ये देखिए ये फाइल यहाँ पे अटैच हो गई। यहाँ पे वो अपलोड पे क्लिक करेगा। ठीक है, और अपलोड पे जब फाइल का नाम यहाँ पे दिखने लगेगा तो वो सबमिट पे क्लिक करेगा। सो ये इस तरीके से हमने क्या किया, एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया, उसका आंसर बच्चों ने लिखा और उन्होंने उसी में उसको अपलोड करके सेंड किया। अब ये आंसर मुझे कहाँ दिखेगा। होप एवरीवन इज डन विथ इट। ठीक है, अभी ये हम लोग क्लासरूम पे आएंगे, तो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, सेटिंग्स से भी बाहर निकल रही हूँ। क्लासरूम पे आएंगे, क्लास वर्क में ये देखिए सब्जेक्टिव असाइनमेंट सिर्फ मैंने ड्राफ्ट बोल के किया था क्योंकि अभी तक के उसको पोस्ट नहीं किया है बच्चों को, जस्ट एक प्रीव्यू स्टूडेंट साइड कैसे दिखेगा वो हमने बोला। अभी मैंने उसको असाइन कर दिया फॉर 100 मार्क्स और उसको कोई ड्यू डेट नहीं, कोई टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, एक जनरल उसको वर्कआउट करवाया है। ठीक है, सो नाउ जैसे ही उस बच्चे ने, अभी मैंने खुद ने ही आपको एक ट्रायल करके बताया, अब आप 18 लोग हो, आप लोगों ने जब भी उसको कुछ फिल करके रिस्पॉन्ड करोगे और आपको हैंडेड इन पे क्लिक करना पड़ेगा तभी मैं उसको इवैल्यूएट कर सकूंगी। ठीक है, अब आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। सब्जेक्टिव असाइनमेंट हमने ड्राफ्ट कैसे किया और उसका आंसर कैसे आया हमको। अब आंसर कहाँ आया ये देखना है।
आंसर सपोज आ गया तो आपको कहाँ आया हुआ दिखेगा? आपको आपके क्लासरूम का ड्राइव खोलना है, गूगल क्लासरूम का जो ड्राइव रहेगा ना वो खोलना है। तो सपोज दिस इज योर गूगल क्लासरूम, क्लासरूम नाम का एक फोल्डर आएगा, उसमें आई जस्ट चेक आउट कहाँ पे, ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने कोई एक स्पेसिफिक ऐसा दिया नहीं था, तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सिलेक्ट हुआ है? ड्राइव पे दिखा रहा है। मैंने उसको ओपन किया, यस सर यू कैन पोस्ट डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। हैंडेड इन सर जब मैं असाइन करूंगी, आपको असाइन मैंने कर दिया है। अब वो बच्चे जब आप एज ए पार्टिसिपेंट उसको अपीयर होगे और सम डॉक्यूमेंट आप अटैच करोगे तो आप देखेंगे आपको हैंडेड इन आएगा, वो आपके एंड पे दिखाई देगा सर। अभी जस्ट मैंने प्रीव्यू करके आपको शो किया था, तो मेरे एंड पे वो नहीं दिखाई देगा। तो ये देखिए इसके बेसिस पे आप एनालिस कर सकते हो। One of you can open the Google Classroom of our FDP on teaching, learning and evaluation using e-tools, और ये जस्ट जो अभी सब्जेक्टिव असाइनमेंट है उसके रिलेटेड कोई भी एक फाइल टेम्पररीली सबमिट कीजिए आपके फोन से या लैपटॉप से, और हैंडेड इन ऑप्शन आएगा आपको तुरंत वहां पे। देखिए मुझे पीपल में कैसे दिखाई देगा, जैसे ये वाला असाइनमेंट है, इतने लोगों को असाइन हो चुका है, ये देखिए इतने लोगों को असाइन हो चुका है, बट नोबडी हैज हैंडेड इन। तो जब आप लोग हैंडेड इन करोगे तो यहाँ पे मैं मैन्युअली उसको मार्क्स डाल सकूंगी। मैं मैन्युअली उसको वहां पे मार्क्स डाल सकूंगी। देखिए ये बंदे को है असाइन किए हुआ बट ही हैज नॉट सबमिटेड। तो जब आप यस यही तो हम इवेल्युएट कर रहे हैं ना सर। ये देखिए हमने क्या किया, ड्राइव पे उस फाइल को ओपन किया, उसको पढ़ लिया, तो उस हिसाब से ये बच्चे को कितने मार्क्स जाने चाहिए हमारे माइंड में डिसाइड हो गया। अगर हम 100 में से 80 मार्क्स देना चाह रहे हैं तो हम कहाँ पे देंगे, जहाँ पे हम लोग क्लास वर्क देखते हैं उस असाइनमेंट पे हम डबल क्लिक करेंगे। असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद इफ आई सी कि ये बच्चे ने या ये स्टूडेंट ने प्रॉपरली वो पूरा असाइनमेंट लिखा हुआ है, वी हैव गॉन थ्रू और देखा है कि ही हैज डन इट वेरी वेल, तो आपको जितने देना है यू मैन्युअली पोस्ट द मार्क्स, तो ये आपका मार्क्स रेडी हो जाएगा। तो इनको इतने मार्क्स हो गए, सेम हियर सेम हियर, ठीक है। ये मार्क्स उनको कब पता चलेंगे, जब मैं देखिए यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करूंगी। अगर मुझे ये सर के ये असाइनमेंट के मार्क्स सर को रिलीज करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा रिटर्न पे। ये देखिए मैंने रिटर्न पे जैसे ही क्लिक किया, एक्चुअली सर ने सबमिट नहीं किया असाइनमेंट एंड आई एम पुटिंग द मार्क्स, सो दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग द कि रिटर्न अनसबमिटेड असाइनमेंट करके। वो अपने से ज्यादा होशियार है गूगल को। तो सर को पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा और जैसे ही सर अटेम्प्ट करेंगे ये मार्क्स उनको रिटर्न हो जाएंगे, तो उस समय वो सर को मार्क्स दिखाई देंगे, ठीक है। आप आपके क्वेश्चन को डायग्रामेटिक भी बना सकते हो, देखिए कैसा कैसे वर्कआउट किया जा सकता है, दैट वी विल सी।
अभी देखिए सबने असाइन किया है, नोबडी हैज रिस्पोंडेड, तो मुझे यहाँ पे वो वैसे ही दिखेगा। अब नेक्स्ट आपको जो ऑनलाइन फॉर्म में ही मार्क्स चाहिए, तो आप उसको कैसे करोगे? मैं असाइनमेंट क्लिक कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ, गूगल फॉर्म यूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट होना चाहिए नाम। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन के जगह आपका कोई डायग्रामेटिक है, तो आप उनके पास लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आप ड्राइंग वाला ऑप्शन ले सकते हो, या फिर आप आपने कोई इमेज बना के रखिए, उसको एज अ फोटो अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फोन में सेव करके रखा है, और यहाँ से ब्राउज करके ये वाला फाइल ओपन करके सो देखिए ये आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो गया। सो यू कैन, आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ टेक्स्ट चाहिए, जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन, तो ये डायग्राम आ गई आपकी, या फिर गिव द डेरिवेशंस, और उस समय आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं लोगे। अब आपको यहीं की यहीं डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये पैराग्राफ ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। ठीक है, क्या लिया मैंने, पैराग्राफ, और इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक किया। अभी इसका प्रीव्यू देखेंगे हम लोग कैसे दिखाई देगा बच्चों को। देखिए अब वो बच्चा उसका आंसर पूरा यहाँ पे जितना उसको टेक्स्ट टाइप करना है उतना वो कर सकता है। प्लीज इग्नोर द टाइपिंग, इट इज जस्ट अ एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए यहाँ के यहाँ उसने पूरा डिटेल्स डाल दिया। अब इसको मैं सबमिट करवा सकती हूँ। तो अब इसका आंसर मेरे पास में कैसा आया, ये आपको दिखाना बनता है। जब आप सबमिट करोगे, हैंडेड इन करोगे, तो यहाँ पे देखिए मेरे एक्सेल शीट में वो आंसर मुझे दिखाई दे। सी दिस इज दैट कंप्लीट आंसर। अभी ये पूरा लंबा लॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो आपको चाहिए, आपको अगर इसको थोड़ा सा ये करना है, प्रॉपर अलाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये बॉक्स पे क्लिक करना जहाँ पे वो पूरा आंसर है, वहां पे राइट क्लिक करना, the things got scrolled. इसके शॉर्ट इसमें नहीं आ रहा है, बफर पॉपअप विंडो पे हम यहाँ से डेटा पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग है। अभी ये ओवरफ्लो है, हम उसको रैप पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप इसके बेसिस पे भी, जैसे मैंने वहां पे आपको ये क्लास वर्क में बताया था, यहाँ पे मैं कितने पॉइंट्स का है वो सिलेक्ट किया,
ड्यू डेट देना है, देना चॉइस आपका है, ठीक है। कौन से टॉपिक पे है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एंड क्लिक ऑन असाइन। Oh, I have not mentioned any title. So this is the title. I am clicking on assign. तो ये आपको सब लोगों को असाइन हो जाएगा। अब लॉन्ग पैराग्राफ के भी अगर आपने स्पेसिफिक आंसर्स बना के रखे हुए हैं, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, है ना, कि हमने आंसर की क्रिएट की थी, तो वैसा ही आप इसमें भी आंसर की क्रिएट करके रख सकते हो। I'll show you again. ठीक है, अब इसकी आपको आंसर की आपके नोटिंग के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आना इज डिफिकल्ट, तो आप आपके पास में वो आंसर की क्रिएट करके रखेंगे उसके रिलेटेड। आपको लगता है तो वो आंसर आप उस हिसाब से बच्चों को पोस्ट करके रखेंगे, सो दैट बच्चे भी अपने अगर अपने आप को इवेल्युएट करना चाहे तो कर सकते हैं, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड कि यस व्हाट शुड बी द राइट आंसर एंड मैंने जो लिखा है वो कहाँ तक सही है। ठीक है, तो ये क्या किया हम लोगों ने, अभी कोई भी पार्टिसिपेंट ने हैंडेड इन नहीं किया है, सो आई एम नॉट एबल टू जज इट। सर जो आप अगर गूगल क्लासरूम इसके ऊपर कर रहे होंगे तो ये सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं सर, सिर्फ उनका लुक जो है फोन पे, वो जैसे अभी यहाँ पे ऊपर में आता है स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, मार्क्स, तो वो यहाँ पे आपको फोन में नीचे में दिखाई देगा, बट ऑप्शंस तो सारे दिखाई देते हैं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं काफी बार काफी चीजें व्हाइल पोस्टिंग एंड एनालाइजिंग आई यूज माय फोन, क्योंकि लैपटॉप ऑन करके मैं एक फिक्स जगह पे लोकेट हो जाती हूँ, तो मुझे जब व्हेन आई एम इन ट्रैवलिंग आई फाइंड कि आई वर्क विथ माय फोन एंड वर्क द थिंग्स। सर लैंग्वेजेस के लिए भी आप, जैसे कल मैंने आप लोगों को शेयर किया था, आपका अगर क्वेश्चन, जैसे अभी आप उनको क्या बोल सकते हो, फिर आप टाइप वाला ऑप्शन नहीं दे पाओगे, आप उनको हिंदी, मराठी, इंग्लिश जो भी भाषा है, या ड्राइंग का कोई आपने चार्ट बनवाने लगाया है, तो आप उनको बोलेंगे जो ऐड फाइल वाला ऑप्शन हमने किया है वो आपको बना के वो पोस्ट करेंगे, और आप उसको जैसे एक नॉर्मल टीचर वैल्यूएट करता है उसके कंटेंट्स को, वैसा आप वैल्यूएट करोगे। ओके सर? Okay, ma'am. हाँ, so like this we can evaluate the things। और अभी जैसे जैसे आप लोग आपका असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करके देंगे, जो भी यहाँ पे मेरे साइड से पोस्टेड असाइनमेंट्स होंगे, तो वो सारे असाइनमेंट्स जैसे ही आप मुझे पोस्ट करके दोगे, सो आई विल बी एबल टू वर्क ऑन इट, शो यू द इवैल्यूएशन, और इफ यू विश हम लोग can't see the second assignment. I think I have posted it, sir. Right now I have posted it. 10:35 it has been posted. Just please refresh your this thing. Either Google Classroom on phone or on the laptop. Okay. So अभी आप लोग क्या करेंगे, सारा मटेरियल का प्रैक्टिस करेंगे, टाइम टू टाइम आई एम पोस्टिंग द डेटा। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो भी एडिशनल फीचर्स ऐसा लगता है, जब हम लोग एक्चुअल फील्ड पे काम करते हैं, तो दैट टाइम यू रियलाइज मेनी हिंड्रेंसेस, और कुछ हमको उस समय उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कुछ क्वेरीज होती है, तो जब भी आप ये पूरा अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, वर्क करने के लिए यूज करोगे, आपके असाइनमेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए वर्कआउट करोगे, तो ये सारा आपको वहां पे वर्कआउट करने के लिए हेल्प करेगा। और जहां पे भी आपको जो जो क्वेरीज आती है, आज आप सब लोग इस पे प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेरीज आती हैं
please post me either on the classroom or on my personal WhatsApp. My WhatsApp number is 830. I'm just putting it out. Okay, this is my WhatsApp number. You can post me your queries and please mention your name beneath it so that I can communicate the answer or the appropriate suggestion or solution for it. Okay, hope whatever contents that we have taken today are properly landed up. Anybody having any doubt and it needs to be resolved? Now, how to conduct a class through Google Classroom? I have to conduct a class. So suppose I have a class on stored with me on PowerPoint. So how do you conduct through the Google Classroom? Sir, if you are installed with Google Meet. So you have to install it on your laptop or mobile phone. Yeah. We have to install Google Meet and Google Classroom on your phone as well as on your laptop, wherever you want to conduct. जैसे अभी मैं Zoom पे सेशंस ले रही हूँ, है ना? तो Zoom मेरे लिए हैंडी है, इसलिए मैंने Zoom सिलेक्ट किया. गूगल मीट में दिक्कत क्या होती है सर कि पार्टिसिपेंट्स अगर क्योंकि खुद से म्यूट या अनम्यूट हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स में दिक्कत क्या होती है कि किसी के कई बार गलती से माइक ऑन हो जाते हैं तो म्यूट नहीं कर पाते सबको. हाँ, और वो भी जल्दी से म्यूट नहीं कर पाते और हम लोगों को भी बच्चों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट गूगल क्लासरूम ने ये एक फीचर प्रोवाइड किया है कि आप गूगल मीट यूज कर सकते हो. अब यहाँ पे जो मैंने जो जूम यूज किया है उसमें आप पीपीटी शेयर कर सकते हो, वैसे भी गूगल मीट में भी पीपीटी शेयर कर सकते हो. वैसे ही सेम आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करके आता है उसमें भी पीपीटी शेयर कर सकते हो. आप आपके वीडियोस बना के, फैकल्टीज अगर अपने अपने वीडियोस बनाते हैं तो वो वीडियोस बना के दे कैन पोस्ट ऑन यूट्यूब और वहां की लिंक जैसे अभी हम लोगों ने असाइनमेंट्स में देखा था तो वैसे वहां पे भी वो शेयर की जा सकती है. That means for conducting a class, Google this Zoom meeting is more convenient than Google Meet. मेरे हिसाब से है सर, बट बहुत से लोग कहते हैं कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है. बहुत सारे अलग अलग अपने अपने उसके कमेंट्स आ रहे हैं. सो दैट इज मतलब जिसको जो कंफर्टेबल होता है वो वैसे वर्क करता है ना. Because we are already conducting through Zoom. But we have not tried on through Google Meet. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी अच्छा है सर, बट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में दिक्कत ये होती है कि इट रिक्वायर्स हेवी डेटा पैकेज. जितना कंपैरेटिवली जूम में ना थोड़ा कम लगता है. जो नेटवर्क का हम लोगों को डेटा पैकेज लगता है ना वो थोड़ा कम लगता है कंपेयर्ड टू मीट एंड टीम्स. Okay, understood. So that's why I prefer Zoom. But अभी हर एक का अपना अपना चॉइस है सर. We cannot restrict anybody. But for assignments and this thing, this Google Google Classroom is very nice, very handy, very helpful. Okay. और जैसे जैसे हम लोग सारे असाइनमेंट्स उनको वर्कआउट करते हैं ना तो हमारे पास में वो चीजें मतलब कंफर्टेबल वे में रेडी भी हो जाती हैं सर. हाँ. But you can't use Google Classroom through Zoom. उसमें वो प्रोविजन नहीं होगा. सर अभी मैंने Zoom के थ्रू ही तो Google Classroom लिया ना. ओह यार, करेक्ट या. तो आप Zoom के थ्रू जब आप क्लासरूम शेयर कर रहे हो तो आप क्या कुछ भी शेयर कर सकते हो ना. आपकी पूरी स्क्रीन ही तो आप शेयर कर रहे हो सर. या स्क्रीन ही शेयर करना. करेक्ट. हाँ जी, स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो. आपको लगता है कि आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों को नहीं पता होना चाहिए, तो आप उस समय क्या कर सकते हो, जिस ऐप जैसे अभी सिर्फ आपकी पीपीटी फाइल ही शेयर होनी है तो आप सिर्फ पीपीटी वाली ही स्क्रीन शेयर करोगे, नो अदर स्क्रीन्स. मैं अभी क्या करती हूँ, मुझे पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताना है इसलिए मैं मेरी पूरी स्क्रीन शेयर करती हूँ.
बट जब मैं MS ऑफिस या ऐसा कुछ पढ़ाती हूँ, जब मेरे इवनिंग सेशंस चलते हैं, तो उसमें आई डोंट शेयर माय स्क्रीन कंप्लीटली, आई यूज ओनली MS वर्ड. Ma'am, I have asked two questions. One Yeah, is, I'll just check it out. I'll just. Yes, sir. We can change the ownership of the quiz. और इसमें yes, we can fill it manually also. और जो गूगल फॉर्म पे हम लोगों ने डाले थे ना, टेस्ट वाला जो ऑप्शन डाला था, तो वहां से वो सिस्टम जनरेटेड भी ले सकता है. We will have to import those values from there. वो भी मैं आप लोगों को actually today is the crunch of time, तो मैं आपको कल इसी समय पे बताऊंगी. For will take if you require will take half an hour क्लास, या फिर मैं डायरेक्टली उसका वीडियो बना के ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी, तो दोनों भी ऑप्शंस हो जाएंगे. जैसे भी आप लोग जो कंफर्टेबल वे सोचोगे. If you want me to conduct the class tomorrow again, I'll conduct. Otherwise, I'll post the video on the Google Classroom. जैसे अभी आप लोग देख रहे हो वैसा वर्कआउट करोगे तो the things will be done. ma'am, can we जनरेटेड भी request होता है you? और मैन्युअली भी होता है, दोनों भी होता है. Can we request you for a final class tomorrow, so that all of us will carry out our practicals, and in case we have any difficulties, then we will probably clarify. So tomorrow's could be only as a doubt clearing session. Yeah, fine, no issues. So we'll start tomorrow by 9:30. Will it do, sir? Yes, perfectly fine. 9:30 is perfectly fine, ma'am. Okay, so tomorrow we'll work on 9:30. 9:30 or 10:30 or 10, whatever. We will just 10:30. clarify all the doubts. 10:30. Okay. Okay. Is anybody having any issues regarding today's data? Sir, how to change the ownership, that I'll demonstrate you once again. Suppose, for example, attendance main is your quiz, and you have created it on the mail ID. Suppose I have created it on Mamta Baheti 3. अब मैं मेरे फ्रेंड को इसको शेयर कर रही हूँ या स्टाफ को शेयर कर रही हूँ, तो मैं कैसे करूंगी? ये राइट क्लिक किया, ड्राइव पे गए, राइट क्लिक किया नाम पे, and I'll click on share. When I click on share, I'll add the name of the person with whom I want to share it. ठीक है, मैंने उसको ये फाइल सेंड कर दी. ठीक है, मैंने क्रिएट किया और उसको सेंड कर दिया. तो अभी इस मोमेंट पे क्या हुआ? मैंने जो फाइल बनाया था, इट में बी अ क्विज, इट में बी अ असाइनमेंट, इट में बी एनीथिंग, बट एक गूगल फॉर्म बनाया था जिसके राइट्स मैंने उसके साथ शेयर किए. ठीक है, अब उसके एंड पे वो क्या करेगा? उसके मेल आईडी में जाके वो गूगल ड्राइव सिलेक्ट करेगा, वहां पे शेयर्ड विथ मी ऑप्शन में वो फाइल उसको दिखाई देगी. ये देखिए, शेयर्ड विथ मी जो ऑप्शन है, ये देखिए,
अटेंडेंस मेन करके जो फाइल था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? किसने शेयर किया है वो भी दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे वो चीज चाहिए मेरे पास, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगी, मैं इसको मॉडिफाई नहीं करूंगी। अगर मैं इसको मॉडिफाई करती हूँ तो वो ओरिजिनल फाइल में भी चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको राइट क्लिक करके मेक अ कॉपी पे क्लिक कर रही हूँ। और जैसे ही मैं इस पे मेक अ कॉपी पे क्लिक करती हूँ, वो कहाँ चला जाएगा, माई ड्राइव में चला जाएगा। अब वो शेयर्ड विथ मी में नहीं दिखेगा, जो कॉपी किए हुआ फाइल है वो। ठीक है, so now you will see this copy of it takes time. ठीक है, यहाँ पे वो दिखाई देगा। और फिर शेयर्ड विथ मी पे जाके I'll just inform my friend कि yes I have taken the copy of it। अब वो क्या करेगा, मैं खुद क्या करूंगी, मैंने जिस फाइल को शेयर किया था उस पे फिर से राइट क्लिक करूंगी, शेयर पे क्लिक करूंगी, और जिसको मैंने एडिटर बोल के ऐड किया था उसको यहाँ से रिमूव करूंगी और सेव करूंगी वो चेंजेस। सो लाइकवाइज आई हैव चेंज द ओनरशिप। मैंने पहले उसको दिया था मेरे काम करने के लिए, मैंने उसको शेयर कर दिया, बाद में वापस से मैंने उसको मेरे फाइल पे से उसके राइट्स हटा दिए। अब वाइस वर्सा ऐसा होना है कि सपोज आपने उसको फाइल शेयर की, आपने बनाया, वो उसको शेयर किया, उसने उसकी कॉपी वहां पे रख ली। अब आपको उसका कोई काम नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको ओनर के जगह एडिटर या रिमूव कर देगा और उसके सेटिंग सेव कर देगा और खुद ओनर बन जाएगा। तो आप क्या उस पर्टिकुलर फाइल से राइट हट जाएगा। दोनों भी केसेस में आप काम कर सकते हैं। होप madam, I have shared the WhatsApp number. Okay, again I'll share it. Okay, fine. Hope everyone has enjoyed the sessions, and please pen down your doubts and practice it so that whatever queries you get, you pass on those queries on the Google Classroom, and likewise also if you want you can post me on my WhatsApp group. Okay, fine. So can we conclude today's session? Yes, ma'am. Thank you so much. We will meet tomorrow at 9:30 then. Okay, fine. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. On behalf of myself, I'll thank the Indian Military School, Chikaldera, Pulgaon and Yavatmal, and my most beloved Kulkarni Kaka for providing me with an opportunity to interact with you all. Thank you so much. Thank you, Can ma'am. I Ma'am, thank you. end the session today? Yes, Yeah, ma'am. Thank you so thank much. you. Okay, Thank fine.